رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ وہ ندی کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں ٹھنڈے پانی میں تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بار بار وہ حویلی کے دروازے کی طرف دیکھتی تھی۔ وہاں سے کوئی اگر اتنی رات کو اسے یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا دیکھ لیتا تھا، آفت آ جانی تھی۔ کافی دیر تک وہ یہیں بیٹھی رہی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو سامنے ہی فرزان سینے پہ دونوں بازو باندھے کھڑا اسے ہی گھوڑ گھوڑ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھ گئی۔ فرزان لالا، آپ اتنی رات کو یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ گھر میں میرا بہت زیادہ دل گھبرا رہا تھا، اس وجہ سے میں یہاں پہ آ گئی تھی۔ دل کیوں گھبرا رہا تھا؟ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، بس ویسے ہی، یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے باہر کی طرف جانے لگی تھی تو وہ فرزان نے اس کی کلائی سے تھاما۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا محبت بھرے انداز میں پوچھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں جانے لگی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگی تو وہ دوبارہ سے اسے وہیں پکڑ کر کھڑا رہا۔ جب تک مجھے بتاؤ گی نہیں تب تک میں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ بس ویسے مجھے ماما بابا کی بہت زیادہ یاد آتی ہے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تو اس کی بات سن کے نہ جانے کیوں فرزان کو بہت زیادہ تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا کہنے لگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں نا۔ وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ خوش رہا کرو، ٹھیک ہے؟ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھے بتایا کرو۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بس چند دن کی تو بات ہے، اس کے بعد ماما بابا واپس آ جائیں گے۔ مجھے بھی لیتے جاتے تو کیا ہو جاتا، میں تو یہاں پہ بور ہوتی رہتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، بور نہیں ہوا کرو، وہ محبت سے سمجھانے لگا تو اس کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ اسے کمرے میں سلایا اور باہر جانے لگا۔ لالا کچھ ٹائم میرے پاس بیٹھ جائے نا، وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ لالا پتہ نہیں کیوں رات کو مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، اس وجہ سے پلیز آپ یہاں تھوڑی دیر میرے پاس ہی رک جائیں۔ وہ نرمی سے بولی تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ فرزان ایک ایک قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا تو اس کے چہرے پہ آئے ہوئے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کیا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ پھر اگلے لمحے وہ اٹھا، جیسے باہر آیا تو سامنے خنسا کھڑی ہوئی تھی۔ خنسا کو دیکھتے وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، خنسا کیا ہوا ہے؟ تم اتنی رات کو یہاں کیوں کھڑی ہو؟ آپ اس کے کمرے میں اتنی رات کو کیا کر رہے تھے؟ خنسا نے غصے میں فرزان سے پوچھا۔ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، اسے ماما بابا کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی، اس وجہ سے میں اس کمرے میں چھوڑنے کے لیے آ گیا۔ اچھا، اب چھوڑ لیا کمرے میں؟ وہ بھی رات کے 2 بجے آپ اس کے کمرے میں ہیں؟ خنسا غصے میں بولی تو خنسا کی بات سن کے وہ کہنے لگا، کیا ہو گیا؟ کیوں ایسے فضول قسم کی باتیں سوچ رہی ہو؟ میں اس کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں، اس کے باوجود تم یہ کہتی ہو؟ آپ شک کرنے والی حرکتیں کرتے ہیں، میرا شک کرنا تو بنتا ہے نا یار۔ دیکھو ابھی تک ہم دونوں کی شادی نہیں ہوئی، پلیز تم اپنے کمرے میں جاؤ، شادی ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اگلے دن رباب بیگم نے بتایا کہ قدسیہ کو بہت تیز بخار ہوا پڑا ہے، بیٹا اسے ہاسپٹل لے کر جاؤ۔ خنسا فرزان کی طرف دیکھنے لگی تھی جیسے وہ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں منع کر رہی ہو کہ نہیں، تم نے نہیں لے کے جانا۔ اس نے کچھ دیر خنسا کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں قدسیہ کو ہاسپٹل لے جاتا ہوں۔ آپ کو ضروری کام تھا نا؟ خنسا نے فرزان کی بات کاٹی۔ وہ میں بعد میں دیکھ لوں گا، ابھی پہلے ہاسپٹل جانا بہت ضروری ہے۔ رات میں بھی شاید طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے بس جلدی سے اندر کی طرف گیا۔ قدسیہ کو کہا، پلیز قدسیہ جلدی سے چینج کر کے باہر آؤ، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی بات سن کے قدسیہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں لالا، مجھ سے نہیں اٹھا جاتا، مجھے آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، کیوں نہیں جانا؟ بھائی چلو شاباش، اٹھو جلدی کرو، وہ محبت بھرے انداز میں بولا تو اس کی بات سن کے وہ بامشکل اٹھی۔ ابھی اٹھی تھی کہ وہ چکرا کر گرنے لگی تو فرزان نے فوراً سے اسے تھام دیا۔ وہ فرزان کے سینے سے چپک گئی تھی۔ لالا مجھے ماما بابا کے پاس چھوڑ آئے نا، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ بچہ، آپ کے ماما بابا 2 دن میں واپس آ جائیں گے، چلو شاباش اٹھو۔
क्या छोटे बच्चों की तरह जिद लगा के बैठ गई हो? वो इसे लेकर हॉस्पिटल आया तो डॉक्टर कहने लगी बस मौसम चेंज होने की वजह से बुखार हो गया है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन वगैरह लिख के दी है। वीकनेस की वजह से इसका बीपी बहुत ज्यादा लो था। डॉक्टर ने ड्रिप लगा दी। लाला मुझे यहाँ पे पेन हो रही है, वो अपना हाथ दिखाते हुए बोली जहाँ पे ड्रिप लगी हुई थी। परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिए वो बैठा हुआ था। धीरे धीरे इसके हाथ की पुश्त को सहला रहा था। थोड़ी देर बाद इसकी जब ड्रिप खत्म हुई तो इसके साथ वापस घर आ गई। फरजान इसे कमरे में छोड़ता हुआ वो निदा को कहने लगा, जाओ कुत्सिया के पास चली जाओ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। जी ठीक है लाला, ये कहते हुए वो कुत्सिया के कमरे में आ गई। इसने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने कुत्सिया बेड पर लेटी हुई थी। निदा चहकती हुई इसके पास आई। कुत्सिया क्या हुआ है, क्यों अपनी तबीयत इतनी ज्यादा खराब की हुई है? इसने नरमी से पूछा तो इसकी बात सुन के नफी में सर हिलाने लगी। पता नहीं क्या हुआ, इतना तेज बुखार हो रहा है। चलो ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास बैठी हुई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर तबीयत ठीक हो जाएगी। लाला तुम्हारी वजह से इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं। वो आंखें बंद करते हुए सोने के लिए लेट गई। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो नींद की वादियों में चली गई। इसके सोते ही निदा कमरे से बाहर आई और फरजान के पास आई। लाला वो सो गई थी, इस वजह से मैं आ गई हूँ। चलो ठीक है। दिन गुजरने लगे थे। पिछले 2 दिनों से घर में खंसा की और फरजान की शादी की बात चल रही थी, मगर फरजान बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा था। इसके बाबा जान कहने लगे, बेटा क्या हो गया, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो? कुछ नहीं बाबा, पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खंसा के साथ शादी नहीं करना चाहता। मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। ये सुन के ने हैरत हुई थी। क्या मतलब बेटा, तुम खंसा के साथ शादी नहीं करना चाहते? सब ठीक तो है ना? बाबा जान, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं कुत्सिया से मोहब्बत करता हूँ। ये सुन के तो इनका दिमाग ही घूम गया। दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? तुम कैसी फजूल बातें कर रहे हो? बाबा जान, मैं कुत्सिया से मोहब्बत करने लगा हूँ। पागल हो गए हो क्या? कुत्सिया तुमसे बहुत ज्यादा छोटी भी है। कुत्सिया के माँ बाबा ने वापस आ जाना है और शादी तुम्हारे सर पर है। तुम क्या कह रहे हो? तुम कुत्सिया से मोहब्बत करते हो? बाबा जान, मैं खंसा से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे खंसा अच्छी नहीं लगती। ये सुन के वो कहने लगे, बस तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बाकी मजीद तुम्हें कोई मसला नहीं है। वो तुम्हें बड़ा भाई समझती है और तुम ऐसी फजूल बातें कर रहे हो। बाबा जान, कोई भाई कहने से भाई नहीं बन जाता, और वैसे भी मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। वो निगाहें झुकाते हुए बोला, चलो ठीक है, तुम्हें खंसा के साथ शादी नहीं करनी तो मैं इसके बाबा जान से बात करूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कभी भी इस रिश्ते के लिए मानेंगे नहीं। वो ना माने फिर भी मैं कुत्सिया के साथ ही शादी करूंगा। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन कुत्सिया के माँ पापा वापस आ चुके थे। जब ये बात की तो कुत्सिया के माँ पापा का तो दिमाग घूम गया। वो कहने लगे, नहीं, हमारी कुत्सिया बहुत छोटी है और वैसे भी इसका बचपन से रिश्ता खंसा के साथ तय था, लेकिन इसकी जिद थी कि वो कुत्सिया के साथ ही शादी करेगा। अब की बार तो खंसा भी जिद पर अड़ चुकी थी। जो शख्स मुझे ठुकरा रहा है, मैं भला इसके साथ शादी क्यों करूं, या जबरदस्ती इसकी जिंदगी में क्यों शामिल हूं? मुझे नहीं इसके साथ शादी करनी। खंसा ने भी रिश्ते से इनकार कर दिया था कि वो इसके साथ शादी नहीं करना चाहती, और शादी से चंद दिन पहले घर में इतना बड़ा हंगामा हो गया। कुत्सिया तो वैसे ही ना कर दी थी कि मुझे लाला के साथ शादी नहीं करनी, मगर अब घर वाले क्या कर सकते थे? फरजान जिद पर अड़ा हुआ था, और फरजान हमेशा से ऐसे ही था। जो बात वो करता था वो करके दिखाता था। इसके लाख इख्तलाफ के बावजूद भी वो इस शादी की तैयारियां होने लगी। आज इन दोनों की मेहंदी थी। वो इसके पहलू में बैठी हुई थी, मगर किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रही थी। न जाने वो कितनी देर तक इसे देखता रहा। फंक्शन के बाद भी वो बिल्कुल खामोशी से कमरे में चली गई थी। वो कमरे में आया तो सामने वो बेड पर घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बैठी हुई थी। चेंज नहीं करना क्या? इसने नरमी से पूछा तो वह नफी में सर हिलाने लगी। नहीं लाला, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो आके इसके सामने बैठ गया, इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, बहुत टूट के चाहता हूँ। वो मोहब्बत भरे अंदाज में बोला, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, ना ही मैं आपको टूट के चाहती हूँ। चले जाएं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो गुस्से में बोली थी। इसकी बात सुन के वो मुस्कुराने लगा था। मेरी जान, आना तो मेरे पास ही है ना? ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चला गया। जब कमरे का दरवाजा खुला और खंसा कमरे में दाखिल हुई, इसे खूनख्वार निगाहों से देख रही थी। मैं एक बेग कदम चलती उसके पास आई। तुमने मेरा हक छीन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। खंसा की बात सुन के वो उठी और कहने लगी, देखें खंसा आपी, मैंने नहीं बोला था, ना ही मुझे लाला में कोई इंटरेस्ट था,
ना ही मैं इनके साथ शादी करना चाहती थी, बल्कि मैं तो अभी भी इनके साथ शादी नहीं करना चाहती। लाला ने खुद मेरा इंतखाब किया है। वो निगाहें झुकाते हुए बोली तो इसकी बात सुन के वो हंसते हुए कहने लगी, अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं हसीन नहीं हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारे लाला ने तुम्हारा इंतखाब किया है? और वैसे शर्म से ना तुम्हें डूब मरना चाहिए। लाला भी कहती और मोहब्बत के ड्रामे भी रचाती हो। इसके साथ किस कदर बेशरम तुम लड़की हो। वो गुस्से में इसकी तरफ देखते हुए बोली तो इसकी बात सुन के वो खामोश हो गई। बेसाख्ता इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। वो कमरे से बाहर चली गई और अगले दिन वो दुल्हन बनी इस शख्स के कमरे में बैठी हुई थी। काफी देर तक इसका इंतजार करती रही, मगर वो जब ना आया तो उठ के आईने के सामने जाके खड़ी हो गई। अपने आप को देखने लगी। बहुत अजीब सा इसे महसूस हो रहा था। दिल इसका बहुत शिद्दत से धड़क रहा था। काफी वक्त बाद कमरे का दरवाजा खुला और वो शख्स कमरे में दाखिल हुआ। फरजान ने जब इसे गुमसुम सा आईने के सामने खड़ा हुआ देखा तो एक एक कदम चलता इसके मुकाबले आकर खड़ा हो गया। इसके कंधों से पकड़ कर इसका रुख अपनी तरफ किया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो, ये कहते हुए इसकी पेशानी पे एक मोहब्बत भरा बोसा दिया तो वो इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर कर गई। खबरदार, आपने मेरे पास आने की या मुझे छूने की कोशिश की। आपने मुझे मुझे आपसे शादी नहीं करनी थी, वो गुस्से में बोली तो इसकी बात सुनकर इसने कुत्सिया के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। कुत्सिया, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगा, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगा। वो नरमी से बोला था। इसकी बात सुन के वो कहने लगी, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। इसके लहजे में बहुत ज्यादा संजीदगी छाई हुई थी। वो तो मेरी जान, मैं तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पे मजबूर कर दूंगा। वो मुस्कुराते हुए बोला, मगर कुत्सिया ने इसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। कमरे में बैठी हुई थी, इसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। कमरे का दरवाजा खुला और वो कमरे में दाखिल हुई। इसे देख के इनके दिल को कुछ हुआ था। वो जानती थी खंसा इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। वो चाहते हुए भी खंसा के पास आई, आहिस्ता से इसके हाथ को पकड़ के कहने लगी, मेरी जान रोना बंद करो। इनकी बात सुन के रोते हुए कहने लगी, मामा आपको पता है ना, मैंने बचपन से फरजान से किस कदर मोहब्बत की थी, कितना इसे टूट के चाहती थी। फिर इन्होंने मेरी जगह ये कुत्सिया का इंतखाब क्यों किया? ऐसा क्या था कुत्सिया में जो मुझ में नहीं था? वो रोते हुए बोली, बेटा बस किस्मत की बात होती है। मामा मेरी किस्मत इतनी खराब है क्या? वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली तो इन्होंने इसे सीने से लगा लिया। अच्छा रोना नहीं है, मैं दोबारा किसी इंसान को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करूंगी। फरजान मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी की नहीं होंगी। वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली, बेटा ऐसा नहीं कहते। ये कहते हुए इसे अपने सीने में भींच लिया और वो आंखें बंद करते हुए न जाने कितनी देर तक रोती रही। फरजान छोड़े मुझे, मैं आपको अपने पास नहीं आने दूंगी, ना ही मैं आपको अपने वजूद पर हक जताने दूंगी। आपने जबरदस्ती मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया है। क्या हो गया, पागल हो गई हो क्या? मेरा हक है तुम पे, मैं हक रखता हूँ। वो इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए मोहब्बत भरे अंदाज में बोला, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती। वो रोते हुए बोली तो इसकी बात सुन के वो इसे मजीद अपने करीब कर गया था, मगर वो इसे खुद से दूर झटक गई। इसके चेहरे पे वो अपने नाखून मार चुकी थी। कुत्सिया पागल हो गई हो क्या? ये तुमने क्या किया? वो संजीदगी से गोया हुआ। कुत्सिया ने इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। वो हैरत से कुत्सिया को देख रहा था तो वो कुत्सिया से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता था। कितना बुरा रवैया इख्तियार कर रही थी। वो कुत्सिया से मोहब्बत करता था। इसने साफ बताया इसके साथ शादी की और वो इसके साथ इतना बुरा बिहेव करेगी, इसे सोचा भी नहीं था। एकदम से कुत्सिया के दोनों हाथों को अपने हाथ में दबोचता हुआ पीछे पिन कर गया और ऊपर झुका। इसने अपने तमाम तरहकूक वसूल कर लिए, मगर कुत्सिया की आंखों में गुस्सा ही गुस्सा था। अरे क्या हो गया मेरी जान? वो इसे अपने हसार में लेते हुए बोला, नफरत है मुझे आपसे। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मेरी जान ऐसे नफरत थोड़ी ना करते हैं। ये कहते हुए मोहब्बत भरा बोसा इसकी पेशानी पे दिया तो वो हिचकियों के साथ रोती हुई अपनी आंखें बंद कर गई। वलीमे के फंक्शन में भी इसके चेहरे पर खासी उदासी छाई हुई थी। वलीमे के फंक्शन में खंसा नहीं थी, वो हॉस्टल जा चुकी थी और इसे हैरत हुई थी। क्या हो गया खंसा, तुम क्यों इतनी ज्यादा रो रही हो? लॉबी में बैठी हुई जब मोहित ने नरमी से इसे अपने साथ लगाते हुए पूछा था, वो मोहित के कंधे से लगी बहुत बुरी तरह से रोने लगी। मोहित, तुम्हें पता है मैंने बहुत ज्यादा मोहब्बत की थी। मैं बहुत टूट के चाहती थी फरजान को। बचपन से मैंने मोहब्बत की थी, वो ऐसे कैसे मेरे साथ कर सकता है? मोहित ने इसके आंसुओं को साफ किया। अच्छा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज हमारी किस्मत में होती है तो वो हमें जरूर मिलती है। जो हमारी किस्मत में नहीं होती, फिर हम चाहे इसके पीछे जितना ही भाग लें, वो हमें नहीं मिलती। ओके ठीक है, अब रोना बंद करो। मोहब्बत से इसके आंसुओं को साफ किया तो वो इस बात में सर हिलाती सो गई।
ऐसे तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। ऐसे तो वो समझेंगी कि इसकी जिंदगी इस शख्स से शुरू होकर तुम्हारी इस पे खत्म हुई थी। फिर मैं क्या करती, बताओ मुझे। वो रोते हुए इसकी तरफ देखते हुए बोली तो इसने कोई जवाब नहीं दिया। वो जब कमरे में दाखिल हुआ तो कुत्सिया किसी के साथ मोबाइल पे बात कर रही थी। इसे देखते ही कुत्सिया कॉल कट कर दी। वो पहले बहुत ज्यादा अटैच थी फरजान के साथ, मगर जब से दोनों का निकाह हुआ था, शादी हुई थी, वो फरजान से बहुत दूर थी। फरजान के साथ बहुत गुस्सा करती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी। इनकी शादी को 1 हफ्ता हो चुका था। 1 हफ्ते में कुत्सिया ने एक दफा भी इससे ठीक से बात नहीं की थी। कल कॉलेज जाना है क्या? वाइस्तगी से इसे अपने हसार में लेते हुए बोला तो इसने इस बात में सर हिला दिया। जाहिर है कॉलेज जाना है। अब क्या आप ये कहेंगे कि मैं स्टडी भी छोड़ दूं? इसकी बात सुन के वो नरमी से मुस्कुरा दिया। मेरी जान, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम स्टडी करो। इस चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए बोला। अगर मैं कहूँ कि मुझे स्टडी नहीं करनी? इसकी बात सुन के वो कहने लगा, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। स्टडी तो आपको करनी होगी। इसकी बात सुन के वो इसे पीछे धकेल गई। मेरी मर्जी, मैं जाऊं या ना जाऊं, आपको क्या लेना देना है? अब की बार फरजान को गुस्सा आया था। एकदम से इसका रुख अपनी तरफ किया। कुत्सिया, तुम अपने आप को समझती क्या हो? बीवी हो तुम मेरी, मोहब्बत करता था तुमसे, शादी की है, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। अब की बार वो भी चिल्लाई थी और जाके सोने के लिए लेट गई। सुबह इसके उठने से पहले वो कॉलेज जा चुकी थी और इसे हैरत हुई। जैसे वो कॉलेज आई तो इसकी निगाहें किसी को तलाश कर रही थी। काफी वक्त बाद इसे ज़िशान नजर आया। ज़िशान को देखते वो फौरन से जाके इसके सीने से लगी बहुत बुरी तरह से रोने लगी। क्या हो गया, पागल हो गई हो क्या? ज़िशान, तुम्हें पता है जबरदस्ती इस शख्स ने मेरे साथ शादी की है। मैं किसी कीमत पे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। ज़िशान, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ, वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली तो ज़िशान ने इसके आंसुओं को साफ किया। अच्छा ठीक है, रोना तो बंद करो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ अपने साथ फ्लैट पर। वो कॉलेज से सीधा इसके साथ फ्लैट पर आ गई। न जाने क्यों वो बहुत ज्यादा परेशान थी। चलो ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाता हूँ। ये कहते हुए वो किचन में चला गया तो कुत्सिया इसके पीछे पीछे किचन में आ गई। वो खड़ा चाय बना रहा था जब इसे पीछे से हक करती इसकी पुश्त पर अपना सर टिका गई। तुम्हें पता है, मुझे इस शख्स से बहुत ज्यादा नफरत हो गई है। मैं तो इसे भाइयों की तरह समझती थी और इसने मेरे साथ शादी कर ली। ज़िशान, मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ, अपनी आंखें बंद करते हुए बोली तो ज़िशान ने इसके हाथ को पकड़ के अपने लबों से लगाया। मोहब्बत तो मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा करता हूँ, वो कुत्सिया की आंखों में देखते हुए बोला। कुत्सिया के हाथ को पकड़ के अपने लबों से लगाया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया। चाय पीने के बाद वो इसके कंधे पर सर रखकर अपनी आंखें बंद किए बैठी हुई थी। कुत्सिया, तुमने वादा किया था कि तुम अपने आप को हमेशा मेरे लिए बचा के रखोगी, फिर कैसे तुमने अपने वजूद भी इस शख्स को हक जताने दिया? मैं क्या करती, मैं बहुत ज्यादा बेबस हो गई थी। ज़िशान, इसने ज़िशान के हाथ को बहुत शिद्दत से दबोच लिया। फिर ये कि तुम मुझे मेरा हक दो, मेरी मोहब्बत का सबूत दो कि तुम वाकई में मुझसे मोहब्बत करती हो। क्या मतलब? वो ज़िशान के कंधे से सर उठाती हुई इसे देखने लगी। मुझे तुम्हारी कुर्बत चाहिए, इसकी आंखों में देखते हुए बोला तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई। खुश्क घूंट बढ़ते हुए इसे देखने लगी। यही कि आप कह रहे हैं ज़िशान? वो संजीदगी से गोया हुआ। ज़िशान कहने लगा, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो फिर मैं यही समझूंगा कि तुम वाकई में इस शख्स से मोहब्बत करती थी, इसके साथ शादी कर ली। नहीं ज़िशान, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। ये कहते हुए वो इसके सीने से लग गई थी। ज़िशान इसके गिर्द बाजों का हसार कायम कर लिया। अगले लम्हे इसको ज़िशान का लम्स अपनी गर्दन पे महसूस हुआ तो वो दूर जाना चाह रही थी, मगर ज़िशान ने जकड़ के इससे मजीद अपने करीब कर लिया। अगर तुम वाकई चाहती हो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन कर लूं तो फिर मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। वो अजीब अंदाज में बोल रहा था। इसकी बातें सुन के कुत्सिया नफी में सर हिलाने लगी। नहीं ज़िशान, ये गलत है, तुमने मेरे पास नहीं। ये कहते हुए इसे पीछे सोफे की तरफ लिटाता हुआ इसके ऊपर साया फगन हुआ। वो इससे दूर जाना चाह रही थी। इसे लग रहा था कि ये गलत है, वो गुनाह करेगी, मगर इस वक्त वो मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी और ये तक भूल गई थी कि वो इस वक्त किसी और की बीवी है और इसने गुनाह की दलदल में कदम रख दिया था। क्या हुआ सर, आप ठीक तो है ना? वो परेशानी के आलम में कभी एक तरफ टहलता हुआ जाता था, कभी दूसरी तरफ जाता। सेक्रेटरी ने नरमी से पूछा था। हाँ मैं ठीक हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। सेक्रेटरी बाहर चली गई। या अल्लाह, ये मुझे क्या हो रहा है? क्यों मेरा दिल इतना ज्यादा घबरा रहा है? फरजान को समझ नहीं आ रही थी अचानक से इसे क्या हो गया। इसने एकदम से मोबाइल निकाला और कॉल करने लगा था। कुत्सिया का नंबर बन जा रहा था। शायद कॉलेज में क्लास ले रही होगी, लेकिन क्यों मेरा दिल इतना घबरा रहा है? इससे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। काफी देर तक इसके नंबर पर कॉल करता रहा। थोड़ी देर बाद अचानक इसके मोबाइल पर खंसा की कॉल आने लगी।
कॉल पिक करते इसने मोबाइल कान के साथ लगाया। खंसा घर में अगर कुदसिया वापस आ गई है तो प्लीज मेरी से बात करा दो। और इसके मुंह से अगले लम्हे ही कुदसिया का जिक्र सुन के खंसा ने फौरन से कॉल कट कर दी। वो तो सिर्फ अपनी अजियत और तकलीफ से आशनास करवाना चाहती थी, मगर इस शख्स के हवासों पर तो शायद कुदसिया छाई हुई थी। इसने गुस्से में मोबाइल साइड पर फेंक दिया और अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचने चिल्लाने लगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? मैं फरजान तुमसे मोहब्बत करती थी, तुमने ये मुझे सिला दिया है। मेरी मोहब्बत का। इसकी मम्मा कमरे में दाखिल हुई। इसके बाबा भी आ चुके थे। क्या हो गया बेटा, क्यों इतना ज्यादा रो रही हो? वो अपने बाबा के सीने से लग गई। बाबा जान मुझे फरजान चाहिए। क्यों? कुदसिया ने इसे मुझसे छीना। कुदसिया ने क्यों इसे मुझसे दूर किया? वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोल रही थी। रोना बंद करो, अल्लाह पाक तुम्हें इससे बेहतर देगा। नहीं बाबा, मुझे कोई बेहतर नहीं चाहिए, मुझे ना बेहतरीन चाहिए, मुझे वही चाहिए। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। इसके बाबा ने इसे अपने सीने से लगाया हुआ था। अच्छा बेटा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे टिकट्स कंफर्म करवा दिए हैं। वो हॉस्टल में भी नहीं रह पाई थी, जिसकी वजह से वो वापस आ गई थी। और मोहित ने यही बोला था कि हम लोग बाहर चले जाते हैं ताकि तुम नए माहौल में एडजस्ट कर जाओगे। मगर वो कहीं जाने को तैयार नहीं थी। मगर वो मजीद क्या कर सकती थी? वो यहाँ पर रजान को किसी और लड़की के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसके दिल को कुछ होने लग जाता था। वो शख्स जिससे बचपन से ख्वाब सजाए थे, जिसके साथ इसने जिंदगी गुजारने के बारे में सोचा था, वही इसका नहीं रहा था। रात का न जाने कौन सा पहर था। वो कमरे में दाखिल हुआ था। सामने कुदसिया मोबाइल में लगी हुई थी। इसे देखते ही मोबाइल साइड पर पटकती सोने के लिए लेटी तो उसने कुदसिया को बाजू से पकड़ के अपने करीब कर लिया। क्या है, दूर रहे प्लीज मुझसे। कुदसिया, तुम्हें मसला क्या है? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत नहीं चाहिए, ना ही मुझे कोई शौक था आपकी मोहब्बत हासिल करने का। वो गुस्से में बोली थी। कुदसिया के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए मोहब्बत भरे अंदाज में बोला, नहीं ना, मुझे आपसे बात करनी है। अब की बार गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, क्यों नहीं बात करनी, बताओ मुझे। वो नरमी से इससे पूछ रहा था क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। मैं ज़िशान से मोहब्बत करती हूँ, मुझे आपसे तलाक लेकर ज़िशान के पास जाना है। वो चिल्लाते हुए बोली। और ये सुन के फरजान ने जोरदार तमाचा इसके मुंह पर रसीद किया। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने शौहर के सामने किसी गैर मर्द का नाम लेते हुए? आपसे पहले वो मेरी जिंदगी में था, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। आपकी बार वो चिल्लाते हुए बोली। और फरजान को मजीद गुस्सा आ गया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कैसी फजूल बातें कर रही हो? हाँ, खराब हो गया है और मैं फजूल बातें करूंगी, वो एक दफा फिर से चिल्लाते हुए बोली। फरजान ने अगले लम्हे जोरदार तमाचा इसके मुंह पर मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? वो गुस्से में चिल्ला रही थी। और तुम्हें पता है मैं ज़िशान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और इसकी बात सुन के फरजान को लगा जैसे किसी ने इसके वजूद से जान निकाल ली हो। वो मासूम सी कुदसिया जो घर में सबकी लाडली थी, जिसके सब नखरे उठाते थे, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था, वो इससे क्या कह रही थी? और कुदसिया को खुद भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो गुस्से और जज्बात में आके इसे अपनी हकीकत बता चुकी है। कुदसिया, वो ज़ेरेला बड़बड़ाया, मगर इसकी आवाज नहीं निकल सकी। क्यों कुदसिया, ऐसा तुमने किया? वो कांपती हुई आवाज में बोला था। और कुदसिया की आंखों में बेसाख्ता नमी तैरने लगी। फरजान, देखो। क्या देखूं? वो गुस्से में पागल हो चुका था। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त अपने पूरे होशो हवास में तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। और वो 3 लफ्ज अदा कर चुका था। और कुदसिया को यकीन नहीं आ रहा था कि वो कितनी आसानी से इसे छोड़ चुका था। अब इन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं बचा था। तुम जा सकती हो, यहाँ से निकलो मेरे कमरे से। मेरे कमरे में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, वो गुस्से में चिल्लाया था। फरजान, वो कांपती हुई आवाज में बड़बड़ाई थी, बस तुम यही चाहती थी ना, हो गया है। जो तुम्हें चाहिए हकीकत थी, चाहे झूठ था चाहे सच था। लेकिन जो औरत इतनी आसानी से लफ्ज अदा कर सकती है कि वो किसी की बीवी होते हुए किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली, तुम्हें क्या लगता है वो मर्द कबूल कर पाएगा? इससे कभी भी नहीं कुछ कह सकेगा। मेरे दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं। आज मुझे तुमसे नफरत महसूस हो रही है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहा था। मुझे भी कोई शौक नहीं है, जबरदस्ती तुमने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया था। ये कहते हुए वो गुस्से में कमरे से बाहर निकली तो सामने इसके बाबा जान खड़े हुए थे, जो इनकी सारी बातें सुन चुके थे। बाबा जान, इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, इन्होंने जोरदार तमाचा इसके मुंह पर रसीद कर दिया। शर्म से तुम्हें डूब मरना चाहिए। मैं तो कहता था मेरी बेटी खुशकिस्मत है, क्योंकि इस किस्मत में फरजान जैसा शख्स लिखा गया, मगर नहीं, तुम दुनिया की बदकिस्मत तरीन लड़की हो जिसने अपने नसीब को ठोकर मार दी। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, बाबा जान मेरी किस्मत सुने। वो कांपती हुई आवाज में बोली, तुम्हें क्या लगता है कुछ सुनने को बचा है? क्या कुछ भी नहीं बचा? तुम मेरे लिए मर चुकी हो।
आज से बाबा जान मेरी बात तो सुने। वो रोते हुए बोल रही थी। इतने में इसकी मामा भी आ गई। सब इकट्ठे हो चुके थे। क्या हो गया, क्यों बच्ची पे चिल्ला रहे हो? इसकी मामा ने नरमी से बोला, ये बच्ची है? अच्छा होता पैदा होते मर जाती, ऐसी गलीज औलाद से तो बेहतर था मैं बे औलाद ही हो जाता। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहे थे, किसी की नाजायज बच्चे को अपनी गोद में पाल रही है, चली जाओ, तुम्हारे लिए इस घर में जगह नहीं है। वो चिल्ला रहे थे। इतने में अंदर से खंसा भी आ चुकी थी। वो हैरत से सबको देख रही थी, मगर इसने कोई बात नहीं सुनी। चली जाओ, मैंने क्या बोला है, इसे मेरी नजर से दूर ले जाओ। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, इस घर से बाहर निकाल दिया। फरजान तो इसे देखना भी नहीं चाहता था। वो ज़ीशान को मुसलसल कॉल कर रही थी, मगर इसका नंबर बंद जा रहा था। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊं? ज़ीशान कहाँ चला गया? क्यों नहीं मेरी कॉल पिक कर रहा? इसने रोते हुए न जाने कितनी दफा ज़ीशान का नंबर डायल किया। आधी रात को वो सड़क पर खड़ी हुई थी। न जाने कितने वक्त के बाद इसे एक ऑटो वाला मर्द मिला। वो इसके फ्लैट की तरफ चली गई। जाकर डोर बेल बजाई तो नींद में डूबा हुआ वो बाहर निकला और सामने से देखकर वो हैरान हुआ। तुम इतनी रात को यहाँ? वो संजीदगी से गोया हुआ रोते हुए ज़ीशान के सीने से लग गई। ज़ीशान, इस शख्स ने मुझे तलाक दे दी है। ज़ीशान, तुम मुझसे शादी कर लो ना। वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली। तो ज़ीशान ने एकदम से एक झटके से इसे खुद से दूर किया। क्या फजूल बकवास कर रही हो? वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला तो वो मजीद हिचकियों के साथ रोने लगी थी। ज़ीशान, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो रोते हुए बोली तो इसकी बात सुन के वो नफी में सर हिलाने लगा। ये तुम क्या फजूल बकवास कर रही हो? ये तुम्हारे शौहर का बच्चा होगा या किसी और का होगा? अगर तुम शादीशुदा होकर मेरे साथ ताल्लुक बना सकती हो, न जाने कितने मर्दों के साथ बना सकती हो। ज़ीशान, तुम क्या कह रहे हो? ज़ीशान, मैं तो हमेशा से सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती थी। तुम्हारे अलावा तो मैंने कभी किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। तुम जैसी औरतों का क्या भरोसा जो अपने शौहर को धोखा दे सकती है। इनके सामने मुझ जैसा मर्द क्या होता है? चली जाओ मेरे घर से। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वैसे भी मेरी शादी होने वाली है। इसकी बात सुन के वो रोते हुए नफी में सर हिला रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? जिसे तुमने अपने शौहर को धोखा दिया, बिल्कुल वैसे मैंने तुम्हें धोखा दिया है। ज़ीशान, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे माँ बाप कभी भी मुझे अपने घर में नहीं रखेंगे। इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। वो रोते हुए बोली थी। तो अब किसी और आशिक के पास चली जाओ। तुम जैसी लड़कियों के लिए नए नए आशिक बनाना कौन सा मुश्किल काम होता है? ये कहते हुए इसके मुंह पर दरवाजा बंद कर चुका था और वो अपने बाल में दबोचते जमीन पर बैठ गई। एक हफ्ता गुजर चुका था, मगर फरजान ने खुद को कमरे में बंद किया हुआ था। ना वो ऑफिस जा रहा था, ना किसी से कोई बात कर रहा था, यहाँ तक कि वो खाना तक नहीं खा रहा था। एक हफ्ते से इससे कुछ भी नहीं खाया हुआ था। भूखा प्यासा वो कमरे में था और अब तो सब बहुत ज्यादा परेशान थे। आधी रात को खंसा के पास इसके कमरे की चाबी थी। जाके इसने दरवाजा खोला तो सामने वो नीचे बैठा हुआ था और शायद वो नशे में लग रहा था। वो चलते हुए इसके पास आई। फरजान, इसने नरमी से नाम पुकारा। इसने निगाहें उठाकर खंसा की तरफ देखा। तुमने मुझे बद्दुआ दी होगी ना, तभी ऐसा हुआ है ना मेरे साथ। इसकी आंखों में नमी थी। नहीं फरजान, मैंने क्यों आपको बद्दुआ देनी है? आपको पता है जिनसे मोहब्बत की जाती है इन्हें बद्दुआएं नहीं दी जाती। वो नरमी से बोली थी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, शायद मुझे इसकी सजा मिली है। तुम मुझे माफ कर दो। वो इसके हाथ को पकड़ते हुए बोला। फरजान इसके कंधे पर अपना सर टिकाते हुए बहुत शिद्दत से रो पड़ी। आपको पता है फरजान, मैंने आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत की थी। मैं आज भी आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। इसके हाथों को शिद्दत से दबोचा हुआ था। आपकी ये हालत मुझसे नहीं देखी जा रही फरजान। क्यों आपने अपनी यह हालत बनाई हुई है, बताएं। वो एकदम से इसके सीने से लगी फूट फूट कर रोने लगी। आपको पता है मैं भी ऐसी तकलीफ से गुजरी हूँ फरजान, मैं संभल नहीं पा रही। वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोल रही थी। फरजान ने इसके आंसुओं को साफ किया। फरजान, मुझसे शादी कर लेना। इसकी आंखों में बेबसी थी। वो इसे बेपनाह चाहती थी और अब इसके सामने बैठी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। पहले इसे देखता रहा, फिर खामोशी से वो इसके कंधे पर अपना सर टिका गया, जैसे इसे भी सहारा चाहिए था। वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। कुत्सिया के बारे में कोई भी नहीं जानता था वो कहाँ गई, मगर बहुत ही सादगी से फरजान का निकाह खंसा के साथ हो गया और खंसा बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। जिस कदर इसने फरजान से मोहब्बत की थी, जितना इसने फरजान को टूट कर चाहा था, इसे तो वो शख्स हर कीमत पर चाहिए था, हर हाल में चाहिए था। इतनी वो फरजान से मोहब्बत करती थी। रात का न जाने कौन सा पहर था। वो कमरे में आया। वो अभी तक सादगी से दुल्हन बनी बैठी हुई थी। वो एक एक कदम चलता हुआ इसके पास आया। वो बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा था, लेकिन वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। आहिस्तगी से वो खंसा के पास आया। आकर इसने खंसा के हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया। मुझे माफ कर देना।
वो नरमी से बोला था तो इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भर लिया। अभी इससे पहले कि वो दोनों कोई बात करते, नीचे से शोर शराबे की आवाज आई। वो जैसे नीचे गई तो सामने कुत्सिया खड़ी हुई थी, बिखरी हुई हालत में, अपने बाबा जान से माफी मांग रही थी, रो रही थी। फरजान को देखते जल्दी से फरजान की तरफ आई, इसके कदमों में बैठ गई। फरजान, मुझे माफ कर देना। फरजान, मैंने गलत किया था, मैं ना समझती। फरजान वो हिचकियों के साथ रो रही थी। आप लोगों का काम था मुझे समझाएं, आप लोगों ने मुझे समझाया तक नहीं। आप लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। माना मैंने गुनाह किया, मेरा गुनाह बड़ा नहीं था। वो रोते हुए भी वहीं गिर गई और न जाने से क्या हुआ। कुत्सिया वो जल्दी से नीचे बैठा, हर चीज एक तरफ, मगर इसने कुत्सिया को बेइंतहा मोहब्बत दी थी। इसे बचपन से लेके अब तक बच्चों की तरह रखा था। वो इसे देखने लगा। कुत्सिया, आंखें खोलो। वो उसकी गाल को थपथपाने लगा, मगर वो इस दुनिया में होती तो इसकी कोई बात सुनती। वो खत्म हो चुकी थी, इसकी जान निकल गई थी। इसका सर फरजान की गोद में था। कुत्सिया, वो इसकी गाल को थपथपा रहा था। इसके बाबा इसके पास बैठ गए। कुत्सिया बेटा, आंखें खोलो ना। कुत्सिया, इसकी मामा बहुत बुरी तरह से रो रही थी। कुत्सिया के जाने का सबको बहुत ज्यादा अफसोस था। इसके बाद तो फरजान की और भी अजीब सी हालत हो गई, मगर खंसा ने इसे संभाल लिया था। कुत्सिया ने गुनाह किया था और वो इसके गुनाह की सजा मिली थी इसे, जबकि फरजान के लिए बहुत मुश्किल था जिंदगी में आगे बढ़ना, मगर वो बढ़ चुका था। कहीं ना कहीं इसके दिल में आज भी कुत्सिया बसती थी। आधी रात का वक्त था, वो बालकनी में खड़ी हुई थी जब इसके पीछे से आके इसे हक कर लिया। इसकी गर्दन को अपने लबों से छुआ और इतने सालों में पहली दफा था जब इसके कितना करीब आया था। खंसा ने मुस्कुराते हुए मुड़ के इसकी तरफ देखा। खंसा, बहुत मुश्किल है, लेकिन अब अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। वो नरमी से गोया हुआ था। इसकी बात सुन के खंसा के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। इसके सीने पर अपना सर रखते हुए अपनी आंखें बंद कर गई थी और वो इसे अपने मजबूत हसार में ले गया।